Hello students, in today's class we will see the questions. First we will go for questions solving on replication and transcription. First we will solve the questions from module. So all of you open your modules and go for day 38 in molecular basis. In molecular basis we will solve questions from day 38. Okay. Here question number 1 is RNA is less stable genetic material as compared to DNA. The reason for this is RNA is unstable. So why RNA is unstable? There are some reasons. RNA is unstable because it is having 2' OH group, it is catalytic, okay, and RNA has uracil in place of thymine. RNA is unstable. If I ask what are the reasons why RNA is unstable, so you should answer it is having 2' OH group. One point. Second point is it is having uracil instead of thymine. Thymine gives stability to the RNA. And third reason is RNA is catalytic. RNA is catalytic. So all these reasons make RNA unstable. RNA को unstable बना देता है. Question number 2 is the DNA model here given, replication model is given. So what is this kind of replication? So this is semi-conservative method of DNA replication suggested by Watson and Crick. Who has got the idea of semi-conservative method of DNA replication? Watson and Crick, but experimentally proved by different scientists. Michelson and Stahl experimentally proved it by using N15, right? Later on it was also proved by Tyler by using radioactive thymidine material. Question number 3. Tyler demonstrated chromosome replication to be semi-conservative in. Tyler represented semi-conservative method of DNA replication in case of Vixia faba. So remember students, what is Vixia faba? It is also called broad beans. It belongs to family Fabaceae. Fabaceae फैमिली से बिलोंग करता है विक्शिया फाबा. Fabaceae का और एक नाम क्या है बोलिए? Fabaceae is also called Papilionaceae. मतलब ये हो सकता है ऐसा क्वेश्चन 11th क्लास में आप पढ़ते हैं Fabaceae फैमिली, Papilionaceae फैमिली in 11th class. So think about question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर आएगा जरा देखिए सब स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 4 करिए. Okay, question number 4 ready हैं? In the experiment conducted by Michelson and Stahl using Hy-Vee N15 to prove semi-conservative nature, the first generation was found to be. So in case of Michelson Stahl experiment, Michelson Stahl experiment में
फर्स्ट जनरेशन कैसे था? अगर एग्जाम में मेसल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट आ गया है आपको, तो फर्स्ट जनरेशन कैसे कंसिडर करेंगे? पैरेंटल डीएनए शुड बी N15 N15 if nothing is given in question. In Meselson Stahl experiment, first generation DNA is what type? Parental DNA is not given, suppose. So what you have to consider? N15 N15. Suppose अगर कोई स्टूडेंट यहां पर N14 लिया तो आंसर आएगा ही नहीं, because Meselson Stahl experiment starts with N15 DNA only. And you know, first generation what happened? Density changes. Both N15 DNAs are separated, upon which N14 new strands are formed. These are hybrid DNA. Okay, ये था क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 5, डे 38 में क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए. So this diagram of separating DNA according to their densities, light DNA go to the bottom, hybrid DNA come to the middle portion, and light DNA comes to the upper area. This kind of DNA replication. Yes, 3 bands are obtained. 3 bands are obtained. और ये सेंट्रीफ्यूगेशन को हम क्या बोलते हैं? दिस सेंट्रीफ्यूगेशन इज कॉल्ड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड बोलना है, इन सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन. ठीक है, डिफरेंट वर्ड से कंफ्यूज करेगा. वेदर इट इज बायोयांट सेंट्रीफ्यूगेशन, वेदर इट इज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, तो हम क्या बोलना? It is density gradient centrifugation using cesium chloride, conducted by Meselson Stahl. Okay, B ऑप्शन लेंगे हम वहां पर. क्वेश्चन नंबर 6, RNA act as. RNA act as genetic material? Yes, RNA act as genetic material in some of the viruses. करेक्ट, लाइक QB बैक्टीरियोफेज है, TMV है, HIV है. मैसेंजर का भी काम करता है. RNA also act as messenger. It take the message for protein synthesis. RNA also act as adapter molecule. RNA also act as adapter. Adapter means it adopt amino acid, transfer amino acid. And RNA also act as a structural molecule, because it help in formation of ribosome structure, तो structural molecule भी बोले. और RNA को हम catalytic molecule भी बोलेंगे. RNA is having several roles. RNA genetic material भी है, catalytic भी है. RNA is having structural role. RNA also having template role. RNA also having adapter role. So many names for the RNA. Okay, so all of these आना चाहिए, A B C D E. Next, question number 7, genetic RNA is that RNA which carry genetic message. Genetic RNA means which carry message for protein synthesis. What is the similarity between DNA and RNA? क्वेश्चन नंबर 8 है. डीएनए और आरएनए में सिमिलैरिटी, बहुत बार आप डिफरेंसेस पढ़े होंगे, लेकिन यहां पर सिमिलैरिटी पूछा है. सो इफ आई वांट टू लिस्ट आउट द सिमिलैरिटी ऑफ डीएनए एंड आरएनए, तो नंबर 1 पॉइंट बोलूंगा मैं. बोथ डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड. नंबर 1 सिमिलैरिटी, डीएनए हो या आरएनए हो, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. Second similarity, both DNA and RNA have 5 prime to 3 prime end. RNA में भी end होता है 5 prime से 3 prime. 5 prime means phosphate, 3 prime means OH. This is also similarity. Third similarity, both DNA and RNA are having similar purines, AG.
adenine, guanine, they are similar in both DNA and RNA. And one pyrimidine is also same. What is the pyrimidine similar in both DNA and RNA? Cytosine. Careful रहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है. Which pyrimidine is similar? Cytosine is similar. हम है ना कितने की हाई लेवल के डीएनए के प्रॉब्लम्स वो कर लेके जाते, वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछता, नेम द pyrimidine विच इज कॉमन इन डीएनए एंड आरएनए. बोलते बच्चे गवानाइन लगा के आते आंसर. क्यों बोलते गवानाइन कॉमन दिखता ना उनको, लेकिन गवानाइन pyrimidine नहीं है, गवानाइन प्यूराइन है. बता रहा हूँ मैं मिस्टेक कैसा करते हैं बच्चे. ठीक है, हर चीज़ को है ना उतना ही सीरियसली लेना. डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को भी उतना ही सीरियसली लेना, इजी कॉन्सेप्ट को भी उतना ही सीरियसली लेना. नीट में, क्योंकि नीट में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर इजी और मॉडरेट टाइप. मेजॉरिटी, वेरी फ्यू क्वेश्चंस आर डिफ़िकल्ट टाइप इन नीट पैटर्न में. ये हुआ है हर साल. और कई बच्चे हैं ना इजी छोड़ देते हैं ना, बहुत ही सिंपल क्या है वही क्या करना है. मेंडल सेलेक्टेड 14 ब्रीडिंग ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ऑफ पी प्लांट, ये भी पूछेगा क्या? पूछा है क्वेश्चन. मेंडल वर्क इन विच ईयर, ये भी पूछा है नीट में. हाँ, अलील का डेफिनेशन भी पूछा है नीट में. कैसा करेंगे? तो बेसिक्स भी बहुत ज़रूरी हैं. बेसिक जो होता है ना, क्या बच्चे क्या है सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस के, हीमोफीलिया के, ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में बिजी रहते हैं पेडिग्री में, लेकिन एग्जाम में उतना सिंपल पूछ लेता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. न्यूक्लियोटाइड कंस्टिट्यूएंट्स नाइट्रोजन बेसिस ऑफ आरएनए. आरएनए के बेसिस AGCU है, इसमें कोई डाउट नहीं है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़े बच्चों को डाउट हो सकता है. व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्लिकेशन इन इशरेशिया कोलाई? ई कोलाई में मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है? व्हाट इज द मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई? तो मैं बोलूंगा डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव एंड बाई डायरेक्शनल. डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव है. सेमी कंजर्वेटिव बिकॉज each newly formed DNA contain one old strand, that is template strand, and one new strand. One template, one new. तो इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन को मैं सेमी कंजर्वेटिव बोलूंगा. डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव एंड बाई डायरेक्शनल. Why it is called bidirectional? Because one strand is going towards replication fork, another strand is going away from the replication fork. That's why it is called bidirectional. ठीक है, चलो ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे हम डे 39 के. डे 39 के क्वेश्चन देख रहे हैं हम. डे 39 में एक अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं आपको. हाँ, डे 39 थीटा रेप्लिकेशन किसको बोलते हैं? थीटा रेप्लिकेशन. थीटा रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन सर्कुलर डीएनए. रेप्लिकेशन इन सर्कुलर डीएनए. वेयर डू यू फाइंड सर्कुलर डीएनए? Circular DNA is found in prokaryotes, right? Circular DNA is found in prokaryotes. So replication in circular DNA is called theta replication. वो कैसे? So first DNA in case of prokaryotes is like this: circular, double-stranded DNA found in bacteria. But at the time of replication, what happens? At the time of replication, DNA looks like this. प्रोकैरियोट की बात कर रहा हूं मैं. यूकैरियोट के आप बोलेंगे सर यूकैरियोट में तो ऐसे दिखता है ना, वाई शेप. हाँ, यूकैरियोट में दिखता है वो.
लेकिन यहां पर डीएनए कैसे दिख रहा है, देखिए थीटा शेप में दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? थीटा रिप्लिकेशन बोलते हैं इसको। सो ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं, इन सर्कुलर डीएनए व्हाट काइंड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, क्वेश्चन बन सकता है। इट लुक्स लाइक थीटा शेप। अगर प्लाज्मिड डीएनए में रेप्लिकेशन होगा तो कैसे दिखेगा? थीटा शेप दिखेगा। यू नो, रेप्लिकेशन मतलब बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए शुड सेपरेट, राइट? बोथ द स्ट्रैंड्स आर सेपरेटिंग लाइक दिस। सर्कुलर डीएनए में बात कर रहा हूं। नाउ दिस इज वन टेम्पलेट स्ट्रैंड, दिस इज अनदर टेम्पलेट स्ट्रैंड। वन स्ट्रैंड सिंथेसाइज कंटिन्यूअसली, अनदर स्ट्रैंड सिंथेसाइज डिसकंटिन्यूअसली। तो कैसा शेप दिख रहा है ये? व्हाट इज द शेप? थीटा रेप्लिकेशन बोले इसको। ओके चलो, नेक्स्ट डे 39 में हम क्या क्या क्वेश्चन देखना है, देखिए। डे 39 के अगर हम बात करेंगे, ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी आना चाहिए, देखिए। For long DNA molecule, since two strands of DNA cannot be separated in its entire length, DNA is not opened in its entire length. DNA opened for replication in small bitwise. It is not opened completely. The replication occur within a small opening of the DNA helix. Okay, DNA is so long, but at the time of replication DNA open at a small bit like this, and this area, opened area, is called क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। आंसर इज रेप्लिकेशन फॉर्क। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस एंड सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन को क्या बोलना चाहिए? सेमी डिसकंटिन्यूअस बोलना चाहिए, क्योंकि वन स्ट्रैंड सिंथेसाइज कंटिन्यूअसली, अनदर स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज डिसकंटिन्यूअसली। तो इसके लिए क्या बोलेंगे? सेमी डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ। ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम, चाहे ओकाजाकी हो या लीडिंग स्ट्रैंड हो। ऑलवेज न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सिंथेसाइज इन 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन। Question number 4. This is what DNA replication. What is this A? What is this B? And what is this C? बोलिए। As per NCERT labeling, so this is continuous synthesis. A is continuous synthesis, B is discontinuous synthesis, and C is रेप्लिकेशन फॉर्क एरिया। ठीक है, ओके। तो यहां पे हम ए ऑप्शन ले लिए। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वन स्ट्रैंड कम फ्रॉम पैरेंटल डीएनए, वन स्ट्रैंड इज फ्रेशली सिंथेसाइज्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन है। वन स्ट्रैंड सिंथेसाइज कंटिन्यूअसली, वन स्ट्रैंड सिंथेसाइज डिसकंटिन्यूअसली। Each newly formed DNA contain one old strand, one new strand. C option लेना, 5 का C। Question number 6, Messels and Stahl perform which centrifugation? Density gradient centrifugation। अभी हम देखे। डीएनए रेप्लिकेशन कौन सा मेथड है? बाई डायरेक्शनल मेथड है। कौन सा मेथड है? बाई डायरेक्शनल मेथड है। Which enzyme is required to catalyze polymerization of deoxynucleotides? यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड 1 by 1 आके जो ज्वाइन होते जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड कम 1 by 1 and join, that is polymerization of nucleotide is performed by which enzyme? DNA polymerase enzyme, DNA polymerase। okay, question number 9, match the following। Griffith conducted experiment on स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया नहीं है ऑप्शन में। निमोकोकस निमोनिया कॉजिंग, कोकस मतलब राउंड शेप बैक्टीरिया। हर्शे एंड चेज बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट करता है। मेसल्स एंड स्टाल
बैक्टीरियो ई कोलाई पे एक्सपेरिमेंट करता है, टाइलर फाबा बीन्स पे करता है। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, ओकाजाकी फ्रैगमेंट फाइनली ज्वाइंड बाय विच एंजाइम? डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, करो, मॉड्यूल में नहीं है, लिख लेना है। मॉड्यूल में नहीं है, करना है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अज्यूमिंग दैट 50 हाईवी डीएनए, 50 हाईवी डीएनए, कितने डीएनए हैं? 50 हाईवी डीएनए मॉलिक्यूल replicated twice in a medium containing N14, we expect, ऑप्शंस भी देता हूं, 100 half heavy and half light and 150 light DNA। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है 100 half heavy half light and 100 light DNA, या ऑप्शन सी है 50 हाईवी एंड 150 लाइट, या ऑप्शन 4 है 50 हाईवी एंड 100 लाइट। बोलो, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? हाँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ मालूम है, यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शंस हटाना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है 1 डीएनए रेप्लिकेट करा तो कितने डीएनए बनते हैं? 2 डीएनए बनते हैं। सपोज मैं 50 डीएनए को रेप्लिकेशन कराऊंगा, 50 डीएनए रेप्लिकेट हाउ मेनी टाइम्स? एज पर द क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स, ट्वाइस बोल रहा है क्वेश्चन में, क्लियरली ट्वाइस बोल रहा है। तो फर्स्ट रेप्लिकेशन में 100 डीएनए बनेंगे, सेकेंड रेप्लिकेशन में 200 डीएनए बनेंगे। ओके, सो 100 डीएनए से कितने डीएनए बन गए? 200 डीएनए बन गए। 200 रहना चाहिए वहां पर ऑप्शंस में, आंसर 200 है ना। पहले ऑप्शन में बोल रहा है 100 हाफ आईवी हाफ लाइट एंड 150 लाइट, मतलब टोटल 250 डीएनए का बोल रहा है, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो गया। कितने का रहना टोटल वहां पे? 200 डीएनए का ही रहना चाहिए, पहला ऑप्शन गया। फोर्थ ऑप्शन भी गया, क्योंकि यहाँ 150 का बोल रहा है, 100 लाइट 50 हाईवी। समझ गए बात? समझ रहे हैं ना कैसे हटा रहा हूँ मैं ऑप्शंस? अब 2 ऑप्शन बचे, क्योंकि 2 ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ये 100, ये 50, 150। ओके, दोनों का भी 200 आ रहा। अब 2 में से आंसर है, कौन सा है बोलो? कुछ बच्चे सी भी बोल रहे हैं, देखिए कैसे करना चाहिए क्वेश्चन, ये बोलो पहले। चलो एक बार हम जो है करके देखेंगे। N15 डीएनए हैवी डीएनए फर्स्ट टाइम रेप्लिकेशन करे तो N15 सेपरेट हो गए, upon which new strand N14 are formed. Okay, this is first round of replication. In first round of replication, how many are light DNA? 0. Light DNA एक भी नहीं है. How many DNA are heavy DNA? 0. Heavy DNA एक भी नहीं है यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन. हाइब्रिड DNA है, दोनों भी 100% हाइब्रिड DNA है. चलो अब नेक्स्ट राउंड में N15 N14 यहाँ पे सेपरेट होंगे, यहाँ पर भी N15 N14 सेपरेट होंगे.
Upon these strand, new strands are formed, N14, 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 N14. ओके, आप पढ़ो क्वेश्चन क्या है। हाँ, 2 टाइम्स रेप्लिकेशन करेंगे। इफ 1 DNA, अगर एक DNA का अगर मैं रेप्लिकेशन करूं तो मुझे 2 DNA ऐसे मिल रहे हैं विच आर हाफ हाईवी हाफ लाइट। out of 4 I am getting 2 half IV half light and remaining 2 light। समझ रहे हैं, मतलब 50% हाफ IV हाफ लाइट एंड रिमेनिंग 50% लाइट, ऐसा मैच होना ऑप्शन। 200 में बोल तो कैसे बोलना, 100 हाफ IV हाफ लाइट एंड रिमेनिंग 100 लाइट, वो मैच हो रहा है सेकेंड ऑप्शन। व्हाट अबाउट थर्ड ऑप्शन, 50 हाईवी। हाँ, हाईवी तो एक भी आ रहा ही नहीं, वो पहले ही हट गया था ऑप्शन। हाईवी तो एक भी नहीं है उधर। फुल हाईवी कोई है, फुल हाईवी कोई भी नहीं है यहाँ पर। हाफ हाईवी हाफ लाइट आया। सो ऐसे करना है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सॉल्व करना है आपको फिर एक बार। मॉड्यूल का नहीं है, बाहर का क्वेश्चन है, देखिए करिए। There are 3 genes. There are 3 genes, small a, small b, small c. Percentage of crossing over between A and B is 20%. B and C is 28%. Okay, and A and C is 8%. What is the sequence of gene? What is the sequence of genes on chromosome? Options are BAC, option B ABC, option D ACB, option D है none of this। सी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक बार कराए हुए हूँ, ऑलरेडी आपके पास है नोट्स में ये टाइप का क्वेश्चन। फिर भी एक मौका और, जो नहीं सीखे और इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो क्या करना। वट एवर नंबर ऑफ जीन गिवन, A B C D E F भी रहने दे, डरना नहीं। सबसे पहला काम करना, सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में मालूम करना। एक 20% है, एक 28 है, 8% है। सबसे ज़्यादा कौन सा दिख रहा है आपको? 28। मतलब B एंड C शुड बी डिस्टेंटली लोकेटेड। एक ऐसा क्रोमोसोम ड्रॉ करके B और C बहुत दूर है ना, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो रहा। डिस्टेंस बिटवीन द जीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। जितना डिस्टेंस उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर, उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन। तो B और C के बीच में कितना क्रॉसिंग ओवर है? 28%। हाँ, और उसके बाद नज़दीक में कौन है? A और C बहुत नज़दीक आना चाहिए। A और C नज़दीक आना चाहिए। ओके, A और C नज़दीक होना चाहिए। 8%। और A और B कितना आना चाहिए? 20%। देखो 20 + 8 कितना होता? 28। मतलब ये जो मैं आंसर लिया BAC बिल्कुल सही है। ठीक है। आप बोलेंगे सर सेकंड ऑप्शन क्यों रॉन्ग होता? देखो करके, ABC अगर मैं लेके करूं ABC, तो यहाँ पे A और B 20 होता,
बी और सी 28 होता, मतलब ए और सी के बीच में कितना आना बोले तो 28 + 8 आना है क्या? नहीं है। ए और सी कितना बोल रहा है? 8%। हो ही नहीं सकता ये आंसर, ए बी सी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके, करने आना चाहिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा है देख लेना। अब यहाँ पे तो बहुत आसान था, छोड़िए, क्योंकि एक ही स्टेप में मालूम है सबसे ज़्यादा कौन सा है, 28%। तो बी एंड सी मस्ट बी डिस्टेंटली लोकेटेड, बी और सी मस्ट बी डिस्टेंटली लोकेटेड एक ही ऑप्शन में। अगर एक ऑप्शन और होता यहाँ पे, कोई और एक जीन ऐड करके कंफ्यूज कराने के लिए, हो सकता है 4 जीन भी देंगे, 5 जीन भी देंगे, डरना नहीं। मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा है देखना पहले। ओके, चलिए, अब ये इस टाइप का क्वेश्चन अब रॉन्ग नहीं होगा अब आपका कभी भी, रूल याद रखेंगे तो ये रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लियो। 2 लिंक्ड जीन्स, बिल्कुल नया टाइप है, देखो ए एंड बी, फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं यहाँ पे। शो 20% रिकॉम्बिनेशन, कितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन? 20% रिकॉम्बिनेशन। The individuals of a dihybrid cross between plus cross with AB shall show gametes. शॉल शो गैमेट्स। पहला ऑप्शन है ++ 80 AB 20 बोल के दे रहा है। दूसरा ऑप्शन है ++ 50 AB 50। तीसरा ऑप्शन है ++ 40 AB 40 प्लस A10 प्लस B10 प्लस B10 प्लस B भी 10 है। ऑप्शन डी है ++ 30 AB 30 प्लस A20 प्लस B20। कैसा करना अभी क्वेश्चन? और ऊपर से ये ++ क्या है? ये डराने के लिए है, वो डराने के लिए वो ++ बोलते हो, डोमिनेंट का साइन है वो। TH मॉर्गन इन हिज एक्सपेरिमेंट यूज प्लस साइन फॉर द डोमिनेंट एलील। TH मॉर्गन क्या यूज करता था डोमिनेंट के लिए? प्लस। ठीक है, मैं ऐसा बोलूं, A, B क्रॉस विथ स्मॉल b और इनके बीच में 20% रिकॉम्बिनेशन है। कितने परसेंट? 20% रिकॉम्बिनेशन है। तो गैमेट्स क्या रहेंगे? 20% रिकॉम्बिनेशन रहे तो 20% न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स होना चाहिए। व्हाट इज 20% रिकॉम्बिनेशन? 20% न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स। 20% न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स कहाँ दिख रहा है? 20% न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स। देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में ++ 80 मतलब एक पेरेंट के जैसा है, 80% पेरेंट के जैसा है, और ए बी भी पेरेंट के जैसा चाहिए भी। मतलब पहले ऑप्शन में पूरे पेरेंट के जैसे हैं। कुछ नया कॉम्बिनेशन आया क्या? नया कॉम्बिनेशन कब होता मालूम है? इधर का प्लस, इधर का ए प्लस ए प्लस बी, नया कॉम्बिनेशन दिखता हो। समझ रहे हैं? एक पेरेंट ++ है, दूसरा पेरेंट ए बी है, वही चाह रहा ना भाई। गैमेट्स में गैमेट्स आर हैप्लॉइड। आप बोलेंगे सर यहाँ
स्मॉल ए दो बार है, स्मॉल बी दो बार है, लेकिन आप एक बार क्यों लिख रहे हैं गैमेट में? बिकॉज गैमेट्स आर हैप्लॉइड, गैमेट्स आर हैप्लॉइड। ओके, अब यहां पे फर्स्ट ऑप्शन में नॉन पेरेंटल टाइप कोई है क्या? एक भी नहीं है नॉन पेरेंटल। प्लस प्लस एक पेरेंट से आया, ए भी एक पेरेंट से, एक भी नॉन पेरेंटल नहीं है, इसलिए गया ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन भी गया क्योंकि 50 आर प्लस प्लस और 50 ए भी है, ये भी नहीं होता। अब थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन पहले कर लेंगे, फोर्थ ऑप्शन पहले करेंगे, ठीक है। प्लस प्लस 30 मतलब ये पेरेंट के जैसा है, ए बी 30 ये भी पेरेंट के जैसा है, दोनों पेरेंट के जैसे हैं, मतलब 60% पेरेंट के जैसे हो गए। और प्लस ए नॉन पेरेंटल टाइप है, न्यू कॉम्बिनेशन है 20 और प्लस बी 20, मतलब रिकॉम्बिनेशन का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 40 हो गया। क्वेश्चन में बोल रहा है 20% रिकॉम्बिनेशन आना, नहीं आता ये फोर्थ ऑप्शन, 40% बता रहा है उधर रिकॉम्बिनेशन। समझ रहे हैं सब लोग? गेटिंग माई पॉइंट? थर्ड ऑप्शन बोलो अब। बिल्कुल, देखो यहाँ पर प्लस ए 10 न्यू कॉम्बिनेशन, प्लस बी 10 न्यू कॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन है ना, प्लस ए एक पेरेंट से प्लस दूसरे पेरेंट से ए, नया कॉम्बिनेशन है। 10 20% न्यू कॉम्बिनेशन बताया, 80% पेरेंटल कॉम्बिनेशन बताया है। दैट्स वाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। सिर्फ यहाँ पर प्लस साइन लगा के डराए हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब ये जितना दिखने में डेंजर दिख रहा है क्वेश्चन, उतना इजी है ये। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हुए डर गए बोल तो मुश्किल है, ठीक है। अगर बायो आपका ईयर लॉन्ग 9 टाइम रिवीजन हो चुका है एनसीईआरटी, हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम रिवीजन हो चुका है और क्वेश्चन से आप डरते नहीं, और डेली कुछ ना कुछ आप 20-30 क्वेश्चन बायो में प्रैक्टिस करें, समझो 20-30 कुछ भी क्वेश्चन करें आप, तो आप डरना नहीं, पूरा जो है 360 आउट ऑफ 360 ले सकते हैं। अब मार्क्स कटेंगे तो सिर्फ डरने की वजह से कटेंगे। फर्स्ट डिसीजन जो लेते हैं ना माइंड में, वो डिसीजन क्वेश्चन देखते ही आपका डिसीजन क्या है वो नहीं रहना, पॉजिटिव डिसीजन रहना आपका हमेशा। क्वेश्चन है, अल्बिनिज्म is known to be due to an autosomal recessive mutation. Autosomal recessive mutation. The first child of a couple with normal skin pigmentation was an albino. इनका फर्स्ट चाइल्ड अल्बिनो है और पेरेंट दोनों भी नॉर्मल है बोल रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सेकेंड चाइल्ड will also be an albino? सेकेंड चाइल्ड भी अल्बिनो होने के कितने चांसेस हैं? ऑप्शंस आर 50%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 25%। बोलो कैसे करना चाहिए? क्वेश्चन में पेरेंट्स हैं और उनका फर्स्ट चाइल्ड है, और एक बात बहुत अहम लिखी हुई है, अल्बिनिज्म इज ऑटोसोमल रिसेसिव।
Albinism is recessive disorder. What is albinism? Lack of melanin pigment. स्किन में अगर मेलानिन नहीं है तो completely white हो जाता है वो. Person gets completely skin turn to white color. Even hairs also become white. तो ये albinism disease है. The first child of a couple with normal skin pigmentation, मतलब फादर मदर दोनों भी नॉर्मल हैं, फादर मदर दोनों भी नॉर्मल हैं, फादर मदर दोनों नॉर्मल हैं, और बच्चे को डिसीज हो गई है. स्मॉल ए लिखूँ ना चाइल्ड के लिए, मैं चाइल्ड के लिए स्मॉल ए लिखूँ बिकॉज इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. इसका मतलब फादर कैपिटल ए स्मॉल होंगे, मदर कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे. कैसा मालूम हुआ मेरे को? चाइल्ड इज हैविंग 2 स्मॉल ए और पेरेंट्स नॉर्मल हैं, तो दोनों के पास एक एक स्मॉल ए आना चाहिए कंपलसरी. अब इनका फर्स्ट चाइल्ड स्मॉल ए आया, तो सेकेंड चाइल्ड क्या रहेगा? सेकेंड चाइल्ड क्या रहेगा? अच्छा, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं मालूम? कुछ बच्चे क्या सोचते हैं? स्टूडेंट्स माइंड कैसे सोचता है? स्टूडेंट माइंड सोचता है, सॉल्व करते हैं, नो कुछ ऐसा सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट, फादर कैपिटल ए स्मॉल ए, मदर कैपिटल ए स्मॉल ए, तो फर्स्ट चाइल्ड कैपिटल ए आना, सेकंड कैपिटल ए स्मॉल ए आना, थर्ड कैपिटल ए स्मॉल ए आना, फोर्थ स्मॉल ए आना. ऐसा सोचते हैं बच्चे. फर्स्ट चाइल्ड कैपिटल ए आना, सेकंड कैपिटल ए स्मॉल ए आना, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए आना, फिर फोर्थ चाइल्ड स्मॉल ए आना. अब बच्चे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ही रॉन्ग है. फर्स्ट चाइल्ड स्मॉल ए आएगा ही नहीं. फर्स्ट चाइल्ड स्मॉल ए आएगा ही नहीं बोलेंगे आप. करेक्ट? तो करेक्ट क्या आंसर क्या है बोलो. अब यहां पे हम क्या करना चाहिए? राइट, यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड कैपिटल ए आने के कितने % चांसेस हैं? 25% चांसेस हैं. ये चाहना बोल के ज़रूरी नहीं है. अगर हम कॉइन को टॉस करें और बोले कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो आप बोलेंगे मैं 4 टाइम्स टॉस करता हूँ, उसमें से हेड कितने बार आएगा, टेल कितने बार आएगा, बता सकते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी है ना, दोनों में से कोई एक तो आएगा ना कंपलसरी. तो ऐसा है, फर्स्ट चाइल्ड कैपिटल ए चाहना बोल के सब फिक्स नहीं है. फर्स्ट चाइल्ड कैन बी स्मॉल ए आल्सो, एंड कैपिटल ए कैन गो एट 4th पोजीशन. यह सबकी इक्वल चांसेस हैं. समझ में आ गई बात अब? अब इनका अगर फर्स्ट चाइल्ड स्मॉल ए, एज पर द क्वेश्चन, फर्स्ट चाइल्ड अल्बिनिज्म है, सेकेंड चाइल्ड अल्बिनिज्म होने के कितने % चांसेस हैं? तो अब कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं, एक बार स्मॉल ए आ गया, अब नहीं आता नेक्स्ट टाइम. एक बार हेड आया तो फिर एक बार हेड नहीं आता क्या? कॉइन टॉस करे, एक बार हेड आया तो आप बोलेंगे नहीं अब हेड आ गया, अब इसकी बारी ख़त्म हो गई, अब टेल ही चाहेगा. है क्या? ऐसा नहीं है. एक बार स्मॉल ए आ गया, फिर नेक्स्ट टाइम भी स्मॉल ए आने के चांसेस उतने हैं. फर्स्ट टाइम स्मॉल ए आया, कितने % चांसेस? 25% है ना. स्मॉल ए आने के 25%, कैपिटल ए आने के 25%, कैपिटल ए स्मॉल ए आने के 50%, ऐसा बताया है. नेक्स्ट चाइल्ड फिर अल्बिनिज्म होने के कितने % चांसेस हैं? फिर 25% चांसेस हैं. 1/4 के चांसेस हैं. मतलब ये क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट का था. ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास ये क्वेश्चन रहना चाहिए नोट्स में. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करो. If mRNA is given, question is if mRNA
5 प्राइम UAC GUA CGU ACG 3 प्राइम। टेम्पलेट DNA क्या रहेगा? बस एक मेंटली रेडी रहने के लिए क्वेश्चन है। वैसे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाता आपको, लेकिन एक हम थिंकिंग ये रखते हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा, या तो टेम्पलेट देगा एग्जाम में, या तो कोडिंग देगा, या mRNA फाइंड आउट करो बोल। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, या mRNA देकर टेम्पलेट पूछा है। नो चेंज इन मेथड वैसे ही है करने का, लेकिन एक अलर्टनेस, ऐसा भी क्वेश्चन होता है। टेम्पलेट DNA निकालना है मेरे को, कुछ भी नहीं। 5 प्राइम रहा तो 3 प्राइम लिखूंगा मैं, U रहा तो A, U रहा तो A कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग उसका, A रहा तो टेम्पलेट लिख रहा हूं मैं, T लिखना पड़ता, नहीं आ रहा समझने तो आप क्या करना, टेम्पलेट मैं जो दिया था फॉर्मूला वो यूज़ करना, टेम्पलेट या mRNA। नहीं समझने आ रहा तो यहाँ 5 प्राइम ATGC ऐसा दिया था ना मैं, 3 प्राइम यहाँ क्या लिखा था मैं, 3 प्राइम UACG ऐसा लिखा था ना मैं, 5 प्राइम। आप यूज़ करो, अगर नहीं आ रहा तो, अब नहीं आ रहा मेरे को ऐसे डायरेक्ट लिखने, तो कम से कम ऐसा यूज़ करके टेबल यूज लिखना आप। 5 प्राइम से 3 प्राइम, अगर mRNA में U आया तो टेम्पलेट में A आना, अगर mRNA में A आया तो टेम्पलेट में T लिखना, C आया तो G लिखना, G आया तो C लिखना, U आया तो A लिखना, A आया तो T लिखना, GCATGC 5 प्राइम, दिस इज द आंसर। ठीक है, ऐसा रैंडमली 1 2 3 लिख के प्रैक्टिस करना आप रफ पेपर पे। कभी भी आप रिवाइज कर रहे हैं तो रैंडमली कुछ भी लिखो ना आप, एक 5 प्राइम mRNA लिखो, ये कंटिन्यूसली T ये U लिखो, mRNA CCC GGG 3 प्राइम। आप लिखो DNA 3 प्राइम, A आए तो क्या लिखना बोला मैं, DNA में T A G C। आप बोलेंगे सर कुछ नया कराओ, ये तो मालूम ही है हमारे को बोले, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे गलती करता है, ये क्वेश्चन में गलती होती। अब बच्चे क्या समझते हैं, ये DNA समझ लेते हैं, कुछ तो भी ऐसा गड़बड़ में, ये DNA समझ के अगर मैं RNA लिखने जाऊँगा, क्योंकि मेंटली हम सेटअप रहते हैं ना, DNA गिवन है, RNA फाइंड आउट, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, RNA गिवन है, DNA फाइंड आउट करना है। ये किसी से भी मिस्टेक हो सकता है, और मिस्टेक होने के बाद, बबलिंग होने के बाद कुछ नहीं कर सकते ना, इसलिए पहले से अलर्ट। और डे 40 के अगर हम क्वेश्चंस करेंगे, मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं मैं आज, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करना ही छोड़ दिए हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस नहीं कर रहे उन्होंने, इसलिए फिर ऑन ट्रैक ला रहा हूं मैं। क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है, क्वेश्चंस करो आप। हाँ, जो क्वेश्चन में आपको ज़रा बहुत थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है आंसर की में, तो पूछ लो क्लास में, सर मेरे को क्वेश्चन नहीं आया समझने, डे 30 का 40 का नहीं आया समझने, ऐसा। डे 40 में क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर इज द प्रमोटर, वेयर इज द टर्मिनेटर। जान दे, ये क्वेश्चन जान दे भाई, डे 40 का मैं एक क्वेश्चन बना के देता हूँ, आप लेबल करो। ये DNA है, ठीक है, DNA है,
What is this strand? What is the name of this strand? What is the name of this strand? पहले ये बोलो. Upper one is which strand? हाँ देखे. Upper in one is which strand? Coding strand है या टेम्पलेट स्टैंड? तो ऐसा नहीं बोलना अपर वन इज टेम्पलेट, लोअर इन इज कोडिंग, ऐसा नहीं बोला मैं कॉन्सेप्ट क्या दिया था आपको? 3 प्राइम टू 5 प्राइम इज टेम्पलेट. कहाँ क्यों नहीं रहता वो अपर और लोअर? समझ गए? एग्जाम में ऐसा एक बार किया था. और ये क्या है? व्हाट इज दिस ए, व्हाट इज दिस बी, व्हाट इज सी, व्हाट इज डी? बच्चे बोले अरे क्या इतना इजी देते हैं. ये ऊपर का टेम्पलेट है, ये नीचे कोडिंग स्टैंड है, ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है. गड़बड़ हो गई. 3 से 5 जो जाता है ना वो टेम्पलेट रहता है. आपके एनसीईआरटी में डायग्राम ऐसा है कुछ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऐसा दिया है आपके पास. ठीक है, ऐसा दिया है. यहाँ पे ऐसा किया एग्जाम में. तो अब ये ऊपर 5 प्राइम से 3 प्राइम गया तो ये कोडिंग हो जाता अब ये, और ये नीचे टेम्पलेट स्टैंड हो जाता अब 3 प्राइम टू 5 प्राइम बोल तो. एंड दिस इज प्रमोटर एंड दिस वन इज टर्मिनेटर. वेयर इज प्रमोटर? 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड है ना प्रमोटर, और 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड इज टर्मिनेटर है ना. समझ गए? मतलब सिर्फ टेम्पलेट और कोडिंग में कंफ्यूजन हुआ. इसलिए एग्जामिनर को इतना लाइट नको लो. बनाते हो ना सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाते, लेकिन डेफिनेटली इन ऑर्डर टू फिल्टर्स द रैंकर्स है ना. और वो मॉर्निंग भी बोल रहा था मैं, जनरल वार्ड में से अलग आना है आपको, रिजर्वेशन में जाना है, तो ऐसे क्वेश्चंस में करना पड़ेगा आपको, तो ज़्यादा सेफ रहेंगे आप. अब आप पूछेंगे सर इंट्रॉन क्या है? इंट्रॉन इज नॉन कोडिंग रीजन. इंट्रॉन इज नॉन कोडिंग रीजन. ओके ठीक है, नॉन कोडिंग रीजन. वाई इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट बोल के क्वेश्चन पूछे. नॉन कोडिंग रीजन, ठीक है, इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग रीजन्स. ओके मान लिए नॉन कोडिंग रीजन्स हैं. देन व्हाट इज इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग रीजन. ठीक है, तो व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंट्रॉन? क्यों है हमारे पास इंट्रॉन? presence of intron is reminiscent of antiquity. Reminiscent of antiquity. What is mean by? ये एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं. Presence of intron is reminiscent of antiquity बोल के लिखा हुआ है बुक में. क्या मतलब इसका? Reminiscent of antiquity means ancestral DNA, ancestral part whose function is unknown. आज से कुछ 1000 ईयर पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके डीएनए में इंट्रॉन में भी कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करता था. But in our DNA, it is not coding for any information. That's why we call it non-coding regions. If you ask me if they are non-coding, why they are present? If they are non-coding, why they are present? So we should tell they are reminiscent of antiquity. That means they are remnant of ancestral DNA part in our cell. कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो एंसेस्टर से चलते आ रहे हैं और इनका फंक्शन अननोन है एंड वी डोंट नो देयर फंक्शन एंड इट विल बी ए मिस्ट्री फॉर एवर. इट विल बी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री फॉर एवर. नोबडी कैन नो द फंक्शन ऑफ इंट्रॉन.
क्योंकि हमारे डीएनए में तो कुछ काम कर रहा नहीं, वो कुछ काम करता था होगा एंसेस्टर में, पता नहीं क्या करता था। ठीक है, क्लियर है? यस। What is the difference between immature RNA and mature RNA? दोनों में डिफरेंस बताओ। Immature RNA मतलब it has both introns and exon. Both intron plus exon, they are present in immature RNA, but in mature RNA only exons. जब मैं मैच्योर वर्ड यूज करूंगा तो ओनली एक्सॉन्स हैं, सारे इंट्रॉन डिलीट हो चुके हैं। समझ गए? मैच्योर आरएनए आर नॉट हैविंग विच एरियाज? नॉट हैविंग इंट्रॉन्स, हैविंग ओनली एक्सॉन्स। चलो एक और क्वेश्चन है, which part of the DNA is different from person to person? Person to person, which part of the DNA is different? Whether pentose sugar is different? Pentose sugar सबके पास सेम एज है ना, सबके पास डीएनए है, सबके पास डीऑक्सीराइबोस शुगर ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। फॉस्फेट ग्रुप में नहीं है डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? आप बोलेंगे नाइट्रोजिनस बेस, थोड़ा रुकना पड़ेगा, नाइट्रोजिनस बेस के बारे में सोचेंगे। नाइट्रोजिनस बेस 4 लेटर्स हैं ATGC, लेकिन इनका अरेंजमेंट कैसा है? इन माई DNA हाउ ATGC लेटर्स आर अरेंज, व्हाट इज द अरेंजमेंट? इन योर DNA हाउ दिस ATGC लेटर्स आर अरेंज, इन थर्ड पर्सन हाउ दिस ATGC आर अरेंज, दैट इज डिफरेंट। all are having pentose sugar, all are having phosphate group, all are having 4 nitrogenous bases, but their arrangement is different. Sequence of nucleotides, sequence of nucleotide is different. What is different? Sequence of nucleotides, nucleotides का arrangement कैसा है? Sequence of nucleotide is different from person to person. In my DNA maybe arrangement is ATGC, in your DNA maybe arrangement is GCTA. Only 4 letter, but arrangements are many types. बहुत ज़्यादा arrangement बन सकते हैं इनके। Okay? What is your question? Any question from your side in today's paper? और आज के क्वेश्चन जितने भी हैं डाउटफुल, जो भी डिफ़िकल्ट के थे क्वेश्चंस, सारे डाउट क्लैरिफिकेशन में क्लियर हो गए हैं क्वेश्चंस। ओके, राइट? तो इन नेक्स्ट क्लास वाइल कमिंग कंपलसरी ब्रिंग मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेके आना है, डे 40। ओके, थैंक यू।